filling process of FYJC CET. So first we understand what is the requirement and why should this form be filled. Every year, Maharashtra government provides an opportunity to every student to apply for first year junior college, FYJC, in Mumbai and other locations. So the admission process, to make it more simplified, government gave you a chance to apply first so that you become in a queue, and then based on your marks, it will allot you colleges. So this process is compulsory for each and every student who is willing to take admission in Mumbai in junior colleges, whether it is from minority or in-house quota or any other kind of quota or open category. Form filling is compulsory. So please understand, first of all, where would you go? This website is Mumbai 11th Admission, mumbai.11thadmission.org.in. आपको मैं ये चैट बॉक्स में लिख देता हूं. सो मुंबई, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं. ये आपको मिल गया. अभी मत चेक करना शुरू कर देना इसको. सो दिस website looks like this. When you open this, I do it starting one. मैं इसको रिफ्रेश कर दिया. तो अब सबसे पहले आप यहां जाएंगे 11thadmission.org.in पे. अगर आप गए, आप यहां से मुंबई सेलेक्ट कीजिए, मुंबई MMR. मुंबई MMR सेलेक्ट करने के बाद आपको ये पेज ऐसा दिखेगा. As I said that this form is compulsory for everyone, so please do not hesitate to fill this form. Whatever you are integrated or minority or in-house or whatever category, this form is compulsory for everyone. Okay, so everyone will have to fill this form. Please give me a minute. Okay. Now, since it is clear that everyone will have to fill this form, we need to understand. यहां पर आपने जब ये पेज देख रहे हैं, यहाँ पे आपको revised schedule for 11th admission process part 1. Earlier, it was to start from 1st of August. Then it was announced from 10th of August. Now it has been re-announced to start from 16th of August. So before 16th of August, a student can come and practice filling the form. So you see here a student mock registration. This is student mock registration. We go to student mock registration. When you apply for student mock registration, this page turns into like this. Here it is asking you a question. Applicants 10th school area. Suppose you are a student of Mumbai area, Mumbai metropolitan area, then press MMR. Outside Mumbai but Maharashtra. Outside Mumbai but Maharashtra. So it is outside MMR area. And those who are from other than Maharashtra state, outside Maharashtra state, it is outside Maharashtra state. If you are a student from Mumbai, then choose within MMR area. Then, are you a fresher or a repeater or previously passed? According to आपने पहले से 10th पास कर लिया है, आप दोबारा से 11th में अपीयर हो रहे हो,
या आपने 10th एक साल दोबारा पहले कर चुके हो और 11th में एडमिशन लेने के बाद आपको लगा कि मुझे दोबारा 11th करना है, देन इट इज रिपीटर. ओके, then it is asking you about, suppose we choose within MMR, I am a fresher, and then I am asking about 10th standard or equivalent examination board. Is it SSC, CBSE or ICSC, IB, IGCSE, National Institute of Open Schooling or any other board? यहां पर एक बात बड़ी मजे की है कि जो स्टूडेंट एसएससी पिक करेंगे उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन भरनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो बोर्ड में उन्होंने इंफॉर्मेशन भरी होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रास्प कर लेगा अगर वो अपना बोर्ड का रोल नंबर डालेंगे तो. ठीक है, अगर मान लीजिए आपने सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या आईसीएसई के स्टूडेंट हैं या आईबी के स्टूडेंट हैं तो आपको वो इंफॉर्मेशन आपको अपने आप पर्सनली डालनी पड़ेगी. सपोज एन आई आईसीएसई स्टूडेंट और मेरा जो रोल नंबर है दैट इज A1 2 3 4 5 6. Okay, then I passed. Month of examination was I don't know when it was, but I would say April, and then year of examination is 2021. Name of the applicant is Pawan Kumar, and email ID I have already filled here. Mobile number is 90290042119. ओके, सो मैंने अपना सीट नंबर जो यूनिक आईडी है वो डाल दिया, यहाँ पे एग्जामिनेशन का मंथ डाल दिया, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन डाल दिया, अपना फुल नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन. सिक्योरिटी क्वेश्चन किस लिए है कि सपोज आप कल को कोई पासवर्ड अगर आपने भूल गए अपना, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की सहायता से आप याद कर पाओगे. सो हु इज योर फेवरेट टीचर इज माय क्वेश्चन, एंड द आंसर इज RANVIR, रणवीर. ओके, सो एंड ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए ये. हालांकि आपको एक जगह लिख लेना चाहिए किसी कागज पे. आप अपनी मर्जी से इसका कोई भी क्वेश्चन चूज करें, कोई भी आंसर दें, वो आपकी इच्छा है. इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैंने जो डाला वही डालेंगे. अब उसके बाद आपने पासवर्ड अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए. आपने पासवर्ड डाला और उसके बाद आपने उसको कंफर्म किया. उसके बाद आपने कैप्चा डाला. कैप्चा J2ZEU, J2ZEU, और उसके बाद आपने रजिस्टर किया. पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम. ओके, मेरा ये पासवर्ड शायद चेंज है. Okay, now one thing you must be clear. आपको ये जो लॉगिन आईडी है ना, ये आपको लिखना चाहिए, आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये मुझे यहां से बाहर भेज देगा. अब मैं नेक्स्ट जैसे ही प्रोसेस करूंगा तो ये मुझे यहां से लॉग आउट कर देगा और मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा. अगर आपको ये यूजर आईडी याद नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इसको अब लिख लो. ओके, सो मैंने इसको लिख दिया. दिस इज MT310742 ओके, सो ये लिखने के बाद आप इसको प्रिंट करना चाहें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप आगे बढ़िए. प्रोसीड टू लॉगिन. अब ये वापस मुझे वहां पे ले गया. देखिए, ये मुझे लॉगिन पेज पे ले गया. अब यहाँ पे लॉगिन आप डालिए MT310742 and my password, I remember that the password is this. मैं दोबारा से कैप्चा डालूंगा H2Y
PY और मैं लॉगिन करूंगा। यहां पे आप आ गए अपने लॉगिन पेज पे। अब ये डैशबोर्ड समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आपने अभी तक सिर्फ क्या किया है, इस फॉर्म के 3 हिस्से हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपने सबसे पहले यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया अपना। सो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया। अब ध्यान रखना कि ये एप्लीकेशन नंबर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए कंपलसरी रहेगा। ये एडमिशन नंबर ही आपका, यही आपका एडमिशन नंबर बनेगा। जो अभी हम लोगों ने यूजर लॉगिन आईडी ये देख रहे हैं ना, यही यूजर आईडी लॉगिन आपका लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, दिस नंबर इज वेरी क्रिटिकल। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब सबसे पहले ये आपको जो लॉगिन दिखा रहा है, यहां पर देखिए एप्लीकेशन डिटेल्स। एप्लीकेशन डिटेल आप इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, मिसलेनियस को ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ आपका एडमिशन अब यहां दिखाई देगा। एप्लीकेशन फॉर्म में गए, यहां पर आपको क्या दिखा दे रहा है, आपको करंट लॉगिन टाइम, यूजर नेम एंड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इज इनकम्प्लीट। अभी प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन डिटेल पे ले जाएगा हमें। देखिए, if you want to apply for in-house quota admission, enter the correct UDIS code or index number of your secondary school। अब ये UDIS नंबर और इंडेक्स कोड आपको आपके स्कूल से मिलेगा। आपकी मार्कशीट पे लिखा होता है, अगर नहीं लिखा हो तो आप अपने स्कूल से मांगिए उनका इंडेक्स नंबर और UDIS कोड। जो स्टूडेंट किसी भी कॉलेज के इन हाउस कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कुछ कॉलेजेस जैसे होते हैं जिनका स्कूल होता है और आपने उसी स्कूल से पास किया और उसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉलेज से आप आगे एडमिशन प्रोसीड कर रहे हैं, तो इन हाउस कोटा के लिए आपको इंडेक्स नंबर और यूडाइस कोड आपको कंपलसरी भरना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इज ऑलरेडी टेकन इनटू द सिस्टम, सो क्रॉस चेक द यूडाइस कोड और एसएससी इंडेक्स। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे तो आपका यूडाइस कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि मेरा यूडाइस नंबर सही से भरा हुआ है कि नहीं। योर एप्लीकेशन विल बी सेंट टू योर रिस्पेक्टिव सेकेंडरी स्कूल फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली। अगर महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आपके स्कूल में चली जाएगी। ओके, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका नाम एंड योर मदर नेम इज CHAMELI, योर जेंडर इज मेल, डेट ऑफ बर्थ इज, आप अगर मैं 10th के हिसाब से देता हूं तो इट विल बी 2005 Feb 2nd। नेम ऑफ योर स्कूल इज, सपोज आपके स्कूल का नाम है ठाकुर पब्लिक स्कूल। यूडाइस नंबर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आई कांट हेल्प इन दैट। आपको यूडाइस नंबर आपको पता करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बट दैट वुड बी कंपलसरी। सेव एंड नेक्स्ट। ओके, मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। अब ये सेव एंड नेक्स्ट के बाद देखो पर्सनल डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपसे एड्रेस डिटेल पे आ गया। एड्रेस डिटेल इज मुंबई, आप अपना पूरा एड्रेस डालिए। ओके, आपने पिन कोड डाल दिया। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट आपको आपकी पता होनी चाहिए। मेरी डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर्बन है और तालुका इज बोरीवली and city is Thakur village. So this is, if applicant doesn't have mobile number or email ID, then please give parents relative mobile number.
ओके, ये दिस यू नो, मोबाइल नंबर है मेरा, कोई दूसरा नंबर नहीं है, लैंडलाइन नंबर भी नहीं है, और ये मेरा ईमेल आईडी है। तो मैंने मोबाइल और ईमेल आईडी यहाँ पे भर दिया, एंड देन आई गो टू सेव एंड नेक्स्ट। नाउ कम द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये चीज आपको समझनी चाहिए, ये आप बार बार आप परेशान हो, इससे अच्छा आप ध्यान से रखना। सिलेक्ट योर कैटेगरी। सपोज करिए आप स्केड्यूल कास्ट हैं तो कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए स्केड्यूल कास्ट है तो आपसे आपका स्टेट पूछेगा, ठीक है। और सेलेक्ट योर कैटेगरी फॉर एडमिशन, तो डू यू सपोज करो यस आई बिलोंग टू स्केड्यूल कैटेगरी, आई एम फ्रॉम हरियाणा, एंड caste certificate issued out of Maharashtra is not eligible for reservation benefits at the Maharashtra state. Hence, your category for admission will be considered as general. तो जो स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट हैं लेकिन उनका सर्टिफिकेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं जारी किया है, उनको डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो शेड्यूल कास्ट नहीं कह पाएंगे अपने आप को, वो ऑटोमेटिकली ओपन कास्ट में चले जाएंगे। और आप महाराष्ट्र बोर्ड गवर्नमेंट की तरफ से आपका सर्टिफिकेट है तो फिर आपको अपना वो सारे प्रूफ वहां देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, एडमिशन से पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होएगा, दैट इज कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। तो अगर आप अपने आप को कोई भी कैटेगरी में डालते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे आपको एडमिशन से पहले दिखाना होगा, दैट इज कंपल्सरी। अगर आप अपने आप को जनरल भरते हैं तो आपको जनरल ओपन में और कुछ नहीं पूछेगा। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप? नो, यस और नो आपको पता होगा। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक क्राइटेरिया? यस और नो आपको पता होगा। हैज एप्लीकेंट्स पेरेंट बीन ट्रांसफर्ड टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया? अब सपोज करो कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो किसी दूसरी स्टेट से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो वो सपोज करो आपने यस भरा, तो ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट हैज टू बी डन ऑन और बस 1 अक्टूबर 2020। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10th फ्रॉम आउट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस एरिया। अगर आप इसको यस करते हैं तो ये तभी वैलिड होगा जब आपने 10th कहीं और से पास नहीं मतलब महाराष्ट्र के बाहर पास किया। मैंने इसको नो कर दिया। वेदर एप्लीकेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर? यस और नो आपको पता होगा। कलेक्टर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, वो आपको कलेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा जिस टाइम पे वो करेंगे, ओके। ई, डज एप्लीकेंट्स पेरेंट बिलोंग टू सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी? नो। डज एप्लीकेंट्स बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी? यस और नो आपको पता होगा। अगर आप यस करेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा आपने क्या खेला है, किस लेवल पे, और क्या रैंक ऑब्टेन किया है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे अपना कैटेगरी डाल दिया। अगर नो करते तो ये क्वेश्चन नहीं आता। इफ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन एज पर द प्रोविजन GR डेटेड अप्रैल 2018, सो यस और नो आपको पता है। हैव यू ऑप्टेड आउट एनी ऑफ द प्री वोकेशनल कोर्सेज? ये 10th क्लास के एग्जाम में आपको यस और नो है। सपोज करो आपने कोई प्री वोकेशनल जैसे बैंकिंग या आपने टाइपिंग वगैरह रखा था तो उसके लिए है ये। नो मैंने कर दिया। अब जो स्टूडेंट इन हाउस कोटा वाले थे उनसे तो हमने पहले स्टेज पे रजिस्ट्रेशन डिटेल के टाइम पे हमसे पूछा गया था कि आपका स्कूल का यूडाइज कोड डाल दीजिए अगर आप इन हाउस कोटा लेना चाहते हैं। अगर आपने वहां पे यूडाइज कोड नहीं डाला है तो ऑटोमेटिकली आपका इन हाउस कोटा खत्म हो गया। अब इन हाउस कोटा अगर आपका खत्म हो गया है, देन डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी? अब माइनॉरिटी कैटेगरी का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज आस्किंग यू, इफ यू से यस आई एम माइनॉरिटी, then what minority? There are two kind of minority, one is linguistic, another is religious minority. अब जैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो मराठी लैंग्वेज बोलने वाले को माइनॉरिटी बोलते हैं, कुछ गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले को बोलते हैं, तो वहां पे माइनॉरिटी में एडमिशन को छूट दी जाती है, यानी उनको एडमिशन पहले दे दिया जाता है। अब सपोज कीजिए कि मैं बोलता हूं कि मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूं, हिंदी माइनॉरिटी है मेरा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी माइनॉरिटी के अंडर कौन से कॉलेजेस आते हैं। क्या आपका कोई
अदर माइनॉरिटी भी है जैसे सिख माइनॉरिटी या पारसी, तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे पहले आपको पूछ लेना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्स कॉलेज या वाई कॉलेज कौन सी माइनॉरिटी को एक्सेप्ट करता है। ये चीज आपको कॉलेज में जाकर ही पता लगेगी और इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो सपोज कीजिए मैंने हिंदी माइनॉरिटी सेलेक्ट किया और यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर इन हाउस कोटा एज यू हैव नॉट फिल्ड एनी ऑफ द इंडेक्स नंबर और UDA स्कोर आउट ऑफ। ओके, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप इन हाउस कोटा नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने तो माइनॉरिटी लिया है इसलिए मैं यहाँ पे इन हाउस यस और नो कर ही नहीं सकता। अगर मैंने इन हाउस कोटा लेना होता तो मैं पहले बैक जाके, अब ऐसा नहीं है कि आप पीछे जाकर कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप किसी भी लेवल पे जाकर बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली वो डिटेल जो भरी हुई थी वो रहेंगी यहाँ पे। ओके, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट माइनॉरिटी में हिंदी कर दिया और फिर मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट किया। ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ये जो हम डिटेल्स भर रहे हैं ना, ये सारी की सारी 13 अगस्त को वाइप हो जाएंगी। अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट रिहर्सल ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मॉक फॉर्म फिलिंग की फैसिलिटी दी है जिसके साथ आप ये फॉर्म भर के देख रहे हैं कि एक्चुअल फॉर्म में क्या आएगा। एक्चुअल फॉर्म डिट्टो ऐसा ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आप ऐसा करके अपने फॉर्म को भरकर देख रहे हैं कि मेरे को और क्या क्या करना है या कैसे कैसे, तो सो दैट यू आर ऑलरेडी रेडी। ये फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टिल 13 अगस्त। 13 अगस्त को ये फैसिलिटी बंद हो जाएगी। उसके बाद 16 अगस्त को ओरिजिनल फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। ये उसका हु बहु डिट्टो मिनिएचर, बिल्कुल एकदम 100% फेयर इसका एक पूरा रेजोनेंस है ये। और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी आपकी बात, मतलब जो ना बिल्कुल यही सारे ऑप्शंस आएंगे। तो अभी आप इसके अंदर जो भी भरेंगे वो सब वैसे भी डिलीट हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है कि मैंने ये गलत कर दिया या ये सही कर दिया। आप आगे पीछे जाकर उसकी इंफॉर्मेशन जितनी बार मर्जी चेंज कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट रिहर्सल। 13 तारीख तक आप इसमें जो मर्जी करो, 13 तारीख के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और फिर आपको फ्रेश फॉर्म भरना होगा 16 अगस्त से। सो आप 13 तारीख तक इसके अंदर जो मर्जी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लेकिन भर के देख लेना चाहिए सबको। अब मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी। ओके, मैंने देखो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं की थी, ओपन है ये। देन आई प्रेस नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है एज पर रूल्स फॉर ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ सब्जेक्ट मिनिमम 7 सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लेस देन 7 सब्जेक्ट ओनली बेस्ट 5 ऑप्शन इज अवेलेबल एलिजिबल यू कैन रेफर द गाइडलाइंस अंडर गवर्नमेंट गैजेट। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ICSE के हिसाब से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन मुझे तो केवल 5 ही चाहिए। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? सेलेक्ट। सबसे पहली बात, यस पास। हैव यू पास्ड इन इंग्लिश? यस आई हैव पास्ड इन इंग्लिश। हैव यू पास्ड इन साइंस? अगर आपने यहाँ पे साइंस नहीं टिक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली कॉमर्स हो जाएगा। कॉमर्स वाले बच्चे को यहाँ पर नो करना है या यस करना है, वो आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपने यस नहीं किया तो आपको साइंस प्रोसेस से एडमिशन बाहर हो जाएंगे। और एक और बात ध्यान रखना, 16 तारीख से जब ये फॉर्म भरा जाएगा, जिस दिन 16 तारीख के बाद आप ये फॉर्म भरोगे उसके 7 डेज के अंदर आप जो मर्जी चेंजेस कर सकते हैं। वंस द एडमिशन फॉर्म इज लॉक्ड, 7 डेज तक ये एडिटेबल रहता है, 7 डेज के बाद ये लॉक हो जाएगा।
लॉक होने के बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे, फिर आपको गाइडेंस सेंटर पे जाकर ही चेंजेस करवाने पड़ेंगे। इसलिए आप ये चीज पहले ध्यान से करें, जो भी करना चाहें ध्यान से करें। कॉमर्स के बच्चों को, अगर आपने साइंस ले रखा था कि नहीं ले रखा तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपको 11th क्लास में साइंस लेना है तो ये यस होना चाहिए, अदरवाइज आपको साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आपको यहां पर अपना 5 सब्जेक्ट्स का कैलकुलेशन देना है। तो जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू वाले बच्चे हैं उनको क्या होगा, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज, ये 4 सब्जेक्ट एंड 5वां आप दूसरी लैंग्वेज दे सकते हैं। ओके, उसी तरह से अगर आईसीएससी वाला स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ऑल दी 3 टुगेदर will be considered as one subject. All the 3 subjects will be considered as one subject. तो सपोज कीजिए कि साइंस में आपके फिजिक्स में 98 है, केमिस्ट्री में 97 है और मैथ में 94 है, सॉरी बायो में 94 है, तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसको साइंस के मार्क्स कहलाएगा आपका। ओके, तो 2 लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स, एक साइंस और एक सोशल स्टडीज। उसी तरह से आपका ज्योग्राफी जो है वो सोशल स्टडीज में काउंट होगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के आपका सोशल स्टडीज में काउंट होगा। सो आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज एंड सेकेंड लैंग्वेज। अब एक बच्चा बोलता है कि मैंने मैथ तो लिया ही नहीं था, तो मैथ के बदले जो भी उसने सब्जेक्ट लिया था उसके मार्क्स भरने होंगे। ओके, बट आपको मेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स भरने हैं। यहां पर आप कंप्यूटर साइंस के मार्क्स नहीं भर सकते हैं, यहां पर आप फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स नहीं भर सकते हैं। ओनली अप टू 500 मार्क्स ही आपको यहाँ पे भरना होगा। ओके, सपोज कीजिए कि अब आपसे ये पूछ रहा है, सपोज कीजिए मेरा पहला सब्जेक्ट था इंग्लिश। ओके, दूसरा सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तीसरा सब्जेक्ट मेरा सेकेंड लैंग्वेज, फोर्थ सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स एंड फिफ्थ सब्जेक्ट इज साइंस। 6 सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप सब्जेक्ट की चॉइस आप भर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, एक सेकेंड लैंग्वेज है और एक एसएसटी है। उसके बाद ग्रुप 2 में आपके पास मैथ है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कमर्शियल स्टडीज, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज एंड एंटरटेनमेंट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। ग्रुप 7 में आपके पास ये सारे सब्जेक्ट है। टोटल मिलाकर आपको 5 वैल्यूज, सपोज अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन पर, आपको टोटल 5 वैल्यूज ही भरनी है। ओके, तो ग्रुप 1 कंपल्सरी। ओके, ग्रुप 2 में एनी 2 और 3 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एनी वन ऑफ दी। ग्रुप 3 में से केवल एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पे एग्जाम कर देता हूँ इसको, और मैंने यहाँ पे बोला मेरे 98 मार्क्स हैं, 97 है, मैथमेटिक्स में मेरे 99 है, साइंस में मेरा 100 है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में मेरा 99 है। ओके, तो मेरा 98.6 परसेंटाइल हो गया। और ये मैंने भरने के बाद बेस्ट 5 टोटल, ऑल सब्जेक्ट टोटल मार्क्स और बेस्ट 5 टोटल मार्क्स। आपने यहां से ऑल सब्जेक्ट टोटल मार्क्स, बेस्ट 5 टोटल मार्क्स आपने फॉर्म 1 एंड 2, उसमें से ग्रुप 3 नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखना। तो आपको बेस्ट 5 भरना है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहां से लैंग्वेज 2 ले लिया। ऑल सब्जेक्ट टोटल मार्क्स नहीं भरेंगे हम यहाँ पे, ये हमें बेस्ट 5 लेना है। ओके, तो बेस्ट 5 हम लोगों ने ले लिया, मेरा 96.3, सेव एंड क्लोज। ये यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली नंबर भर गए। देन यू प्लेस सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन भर दिया है, पर्सनल डिटेल भर दिया है, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नाउ इट इज आस्किंग यू
कि हमने स्टूडेंट्स कल को अगर प्रॉब्लम आती है कोई, तो वो किससे पूछने जाएगा? आप सबसे पहले अपने आसपास का जो भी आपका एरिया है, जोन है, वो भरिए। जैसे मैं मुंबई वेस्ट में रहता हूं, तो मैंने मुंबई वेस्ट सेलेक्ट किया। अब वो बोलता है कि मुंबई वेस्ट में इतने सारे, ये 5 जगह 6 जगह हैं जहां पे हमने गाइडेंस सेंटर बनाया है। अंजुमन इस्लाम, ये चाइल्ड वेलफेयर, चिल्ड्रन वेलफेयर वेलफेयर सेंटर जूनियर कॉलेज, एंड देन निर्मला मेमोरियल, and then Saili, then Srinivas Bagarka, and then Vidyanidhi Junior College of Science Andheri। तो सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि ठीक है मैं साइली में जाऊंगा, और मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ये आपको पता होगा कि आपको कौन सा चूज करना है। कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस जगह पे जाकर, जो भी आप गाइडेंस सेंटर, वहां पे अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो उसका सॉल्यूशन कर देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी लेवल पे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट अपलोड कीजिए। जब आप 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, तो 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट अपलोड करने के बाद पूछेगा, मैंने ब्राउज में गया और मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या है अपलोड करने के लिए। देखो मैंने क्या करते हैं, ये मैंने फॉर्म भर दिया इसका। 10 मिनट, ये मैंने एक फॉर्म भर दिया इसमें। ओके, अपलोड कर दिया मैंने डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद वो आपको बता रहा है कि देखो आपने ये चीजें भरी हैं। नाउ दिस इज गिविंग यू, आपको एडिट ऑप्शन है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। ये भी हर जगह पे आपको दिखा रहा है आपने ये ऑप्शंस भरी हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम सही हैं, हर एक इंफॉर्मेशन सही है, अगर आपको लगता है यस आई शुड गो अहेड, तो आपको ये फॉर्म लॉक कर देना चाहिए। लॉक कर देने से अभी तो खैर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लॉक करने के बाद भी वैसे भी आपको 16 तारीख से दोबारा फॉर्म भरना है। ये जस्ट आपका रिहर्सल था। ओके, अब आपको यहाँ पे देखिए सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो आपको बोल रहा है 10th मार्कशीट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। ये बड़ा जरूरी है भाई। जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं उनको वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है, और जो बच्चे अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड हैं उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके, सो इसका प्रोसेस भी बताऊंगा। आप उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको वो उसका फॉर्म का प्रिंट आउट लेने बोलेगा। ओके, का प्रोसेस आई विल टेल यू लेटर। अब मान लीजिए मैंने इसे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया। यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई, चेंज, ऑल्टर योर एप्लीकेशन फॉर्म वंस यू लॉक इट। अगर आपने इसको लॉक कर दिया, तो लॉक करने के बाद आप इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको श्योर है तो ही आप इसको लॉक कीजिए। मतलब 13 तारीख तक तो आप जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वेनिश हो जाएंगी सारी इंफॉर्मेशन, और 16 से फॉर्म भरना शुरू होगा। तो 13 तारीख से पहले इसको कंफर्म करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद वो आपको बोल रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना कंपलसरी है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंपलसरी प्रिंट करने के बाद ये फॉर्म सबमिट होगा। जब एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज में, तो इस फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म 1। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्म 1। ये फॉर्म 1 एडमिशन के लिए सबमिट करना होता है। जिन बच्चों के इन हाउस कोटा में या माइनॉरिटी में एडमिशन हो गए हैं, उनको भी ये फॉर्म 1 एडमिशन के टाइम पे वो अपना कंफर्मेशन के टाइम पे सबमिट करना होगा। जिनके ऑलरेडी एडमिशन हो गए उनको भी ये फॉर्म कंपलसरी सबमिट करना होगा। सो आप अपना ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए। अभी करने का कोई फायदा नहीं है, 16 तारीख के बाद करेंगे इसको। अभी तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। अब ये पूछ रहा है एलिजिबिलिटी। यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, योर एडमिशन प्रोसेसिंग फीस इज नॉट पेड। अभी मेरे को एडमिशन फीस भी पे करनी है। अब वो 225 रुपए एडमिशन फीस पे करने बोलेगा मेरे को। यू नीड टू गेट योर
फॉर्म वेरीफाइड फ्रॉम योर स्कूल सेलेक्टेड गाइडेंस सेंटर। आप अपने स्कूल में जाइए और उनको बोलिए कि मेरा फॉर्म वेरीफाई कीजिए। जब आपको फॉर्म वेरीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मार्कशीट जो है यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगी, और वेरीफाइड होने के बाद ही आप इस फॉर्म का नेक्स्ट हिस्सा भर सकते हैं। जब तक आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा, जब तक आपकी मार्कशीट पेंडिंग दिखाई देगा, तब तक आप यहाँ पे नेक्स्ट इस फॉर्म का जो दूसरा हिस्सा है, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दो हिस्से थे, पार्ट 1 हमने पूरा कर दिया। पार्ट 1 पूरा तब माना जाएगा जब आपका ये यहाँ पे पेंडिंग नहीं रहेगा, ये वेरीफाइड आ जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपका दूसरा फॉर्म का हिस्सा फॉर्म ऑप्शन फॉर्म 2 खुलेगा। अभी वो ओपन नहीं हुआ है, वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद शुरू होगा, 16 तारीख के बाद भी। उस फॉर्म में कॉलेज की ऑप्शन भरी जाती हैं। आपको सबसे पहले ये बोला जाएगा कि मैं कौन से कॉलेज सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो वो सब कुछ फॉर्म 2 में आएगा। ये फॉर्म 1 में आपने अभी लाइन में लगे। उसके बाद आपने देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस आपको दिखाएगा, स्टूडेंट टाइमलाइन। अब देखिए आपने अपनी टाइमलाइन पे गए, आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे एडमिशन का क्या हुआ, तो जो स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे पेंडिंग की बजाय वेरीफाइड दिखा देगा, उनका एडमिशन कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होगा, आपको एक मेल आएगा या आपको एक जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एसएमएस आएगा। आपको स्टूडेंट टाइमलाइन देखते रहे, अपनी जो भी स्टेटस होगा यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो गया आपका। पार्ट 2 पेमेंट हिस्ट्री, ये पेमेंट करने बोलेगा, मोबाइल नंबर के मेल आईडी चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन चॉन करना है, या आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है। आप अभी सिर्फ यहीं तक देख सकते हो। पार्ट 2 एंड पार्ट अलॉटमेंट एप्लीकेशन ये बाद में खुलेंगे, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं खुलेंगे। और अभी पेमेंट कर नहीं सकते क्योंकि अभी तक सिर्फ मॉक रिहर्सल चल रहा है फॉर्म भरने का। तो हम लोग दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले आपने अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करा। यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आती है उस पर से अपना यूजर आईडी, ये जो फॉर्म नंबर है, इसको नोट कर लें, और पासवर्ड आपको याद ही होगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपको रीलॉगिन करने बोलेगा। रीलॉगिन करने के बाद आप अपनी स्टेप वाइज यहां पर पहुंच जाएंगे। ये वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरेंगे आप। ओके, ये देखिए आपने यहाँ पे मैंने उसको लॉक कर दिया था, तो मैं उसको 7 डेज तक अनलॉक कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर देंगे तो 7 डेज तक आपको अनलॉक करने की सुविधा देगा। 7 डेज के बाद अनलॉक भी नहीं कर पाएंगे, फिर आपको गाइडेंस सेंटर पे जाकर ही फॉर्म अनलॉक कराना पड़ेगा। ओके, इसलिए कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने FYGC चैट ग्रुप में डालते रहें। कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे बता भी सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी है, हम लोग SP क्लासेस करके एक कंपनी है, SP क्लासेस साइंस परिवार के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, और SP क्लासेस की तरफ से हम लोगों ने ये काम किया है। करियर लॉन्चर एंड SP क्लासेस के नाम से हमारी कंपनी है। हम लोग मुंबई में अलग अलग लोकेशंस पे हैं और बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। 11th-12th के साथ 2 ईयर का प्रोग्राम, IIT JEE या नीट या MHT CET, और हमारे यहाँ पे स्टेट बोर्ड बहुत शानदार लेवल पे होता है, जिसके साथ आप नीट का रिजल्ट और चाहे किसी भी तरह का रिजल्ट अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा निकलता है। ये SP क्लासेस की वेबसाइट आप अगर देख पा रहे हैं, हमारा इस पे जो भी फैकल्टीज हैं सभी फैकल्टीज का यहाँ पे दिया हुआ है। हमारे पिछले जितने भी आज तक सालों के रिजल्ट आए वो सारे के सारे देखो यहाँ पे JEE के रिजल्ट हैं, नीट के रिजल्ट हैं, CET के हैं, नाटा के हैं, सभी रिजल्ट हमारे यहाँ पे मेंशन है। ये हमारा स्टूडेंट गैलरी है। और अगर कोई मेरे डेमो लेक्चर देखना चाहे तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट पे बॉटम में ये मेरे यहाँ पे डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं। आप कोई भी डेमो लेक्चर अगर देखेंगे, यू वुड लव आवर फैकल्टीज। हमारे फैकल्टीज पढ़ाते बहुत शानदार हैं। अगर किसी स्टूडेंट को 11th-12th के लिए कोचिंग चाहिए तो मोस्ट वेलकम।
आप हमारे यहाँ पे एसपी क्लासेस में आके ज्वाइन करें। मेरा नाम पवन है। अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस। अब कोई क्वेश्चन या आंसर अगर पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। माई नंबर इज 9029004219 और ये मेरा नंबर है। मैं आपको एक और अपना चैट बॉक्स जो हमारा इसका FIGC का जो ग्रुप बना हुआ है, सब लोगों को वो ज्वाइन करना चाहिए हमारा। उसमें सब अपडेट आती रहती हैं। अगर आप कोई भी अपडेट करना चाहें तो वहां से आ सकती है। और हमारा एक FYJC ऑप्शनल CET के लिए एक प्रिपरेटरी कोर्स चल रहा है 499 में। अगर किसी ने CET की तैयारी करनी है और वो प्रॉब्लम में है तो आप हमें लिखें या आप हमें कॉन्टेक्ट करें जैसे, और कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग हैं साथ में। ये मेरा मोबाइल नंबर है और मैं आपको ये FIGC CET का लिंक दे रहा हूं, आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक मिनट देखिए, ये मैंने आपको, यस, आप इस FIGC CET ये जो मैंने लिंक दिया है आपको चैट बॉक्स में, अभी इस चैट में से लिंक ले लें और इसको सभी लोग ज्वाइन करें, ताकि सब लोग, कोई भी अगर किसी को क्वेरी हो तो हम लोग इस ग्रुप में हमेशा अपडेट करते रहते हैं। कोई भी अगर किसी को कुछ पर्सनल क्वेरी है तो मुझे फोन कर सकता है, ठीक है। अगर मैं नहीं उठाता हूं तो मुझे प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे डाल दीजिए मैसेज, और यू विल सी कि अगर मैंने आपका कॉल नहीं उठाया है तो रात को सोने से पहले मैं हमेशा जितने भी कॉल्स है उनका सबका जवाब देता हूं या व्हाट्सएप का जवाब देकर ही सोता हूं मैं। सो प्लीज डू नॉट गेट एंग्री विद मी कि नहीं सर आपने जवाब ने फोन किया था, तो उसका बुरा नहीं मानना भाई, ठीक है। तो मैं भी किसी न किसी मीटिंग में होता हूं, तो आप मेरे को कभी भी कॉल करोगे, मैं नहीं उठाता हूं तो मुझे व्हाट्सएप डाल दो, मैं आपके जवाब दे दूंगा। डू वी हैव टू प्रिंट द फॉर्म बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट? नो, आपको मार्कशीट वेरिफिकेशन के बाद ही प्रिंट करना चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर जैसे मैंने बताया, आप लिख लीजिए 9029004219। मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया टू एवरीवन, मेरा चैट बॉक्स से आप नंबर ले लीजिए 9029004219। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको गाइड करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए, पुणे के स्टूडेंट्स के लिए भी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं प्रशांत सर को भी इसमें ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुणे के लिए या नासिक के लिए गाइड तो मैं हर जगह के लिए कर सकता हूँ। आप मुझे अगर कॉल करेंगे तो मैं आपकी कॉल को वेस्ट नहीं करूंगा, परेशान मत होइए आप। कहीं के लिए भी पूछेंगे हम आपको बता दूंगा। ओके, देन sir, will this work for Vasai students? Yes, this will work for Vasai students. For admission in ठाकुर कॉलेज, जो ठाकुर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, माइनॉरिटी का मतलब होता है अगर आप ठाकुर पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, सॉरी, इन हाउस का मतलब होता है ठाकुर पब्लिक स्कूल, ठाकुर श्यामनारायण या ठाकुर विद्या मंदिर या ठाकुर इंटरनेशनल। अगर आप इन 4 स्कूल से हैं तो वो ठाकुर कॉलेज में इन हाउस काउंट किए जाएंगे। अगर आपने इन हाउस में एडमिशन लिया है तो माइनॉरिटी मत सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप इन 4 स्कूल्स में से नहीं हैं एंड यू आर अ रेजिडेंट समहाउ, अगर आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू राजस्थान, हरियाणा, यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तर और मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये 7 स्टेट्स में से हैं तो आपको माइनॉरिटी सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इन 7 स्टेट्स में से नहीं है तो आपको माइनॉरिटी नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। एंड यू कैन कॉल मी पर्सनली। Sir, can you tell me site name again?
ओके, मैं साइट का नाम यहाँ पे दोबारा से डाल रहा हूं, दिस इज 11thadmission.org। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया वेबसाइट का नाम। आई ऑलरेडी गॉट माई एडमिशन ठाकुर, डू आई स्टिल हैव टू गिव एग्जाम? देखिए वैभव, दिस इज अ वेरी वन जनरल क्वेश्चन। मेरे सीईटी एंड ठाकुर कॉलेज स्टूडेंट्स, प्लीज ये एक बेसिकली ये जो चैट है वो अक्रॉस मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए है। सो आई कैन नॉट से आपको सीईटी एग्जाम देना है कि नहीं देना है, उसके लिए आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लीजिए। ओके, एनी अदर क्वेरी देन सीईटी। सीईटी का अभी तक फैसला नहीं आया है, देख लेते हैं। अभी कुछ इसका फैसला हुआ है कि चलो, अभी किसी ने पूछा तो मैं साथ के साथ इसको खोल के देखता हूँ। अभी गूगल पे हम लोग गए और गूगल ने हमें क्या बताया, ऑप्शनल सीईटी बॉम्बे हाई कोर्ट। अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। देखो लेट नाइट तक अगर कुछ आएगा तो बताऊंगा। आप एसपी क्लासेस में विजिट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो। साइंस परिवार क्लासेस, एसपी क्लासेस वसई, विरार, मलाड, ठाणे, बोरीवली, विले पार्ले, अलग अलग लोकेशन पे है। इसके अलावा हमारी ब्रांचेस पुणे में भी हैं, और वाशी में भी है, नेरूल में भी है, खारगर में भी है। ठीक है, तो मुंबई के अलग अलग लोकेशन में आपको किसी भी जगह पे हेल्प चाहिए तो आपको मिलेगी। वाशी, नेरूल, खारगर, पुणे में भी है, और वसई, विरार, ठाणे, बोरीवली, मलाड, विले पार्ले में भी है। इट इज केप्ट टुमारो एट 2:30 फॉर ऑर्डर्स। ओके, थैंक यू लौकिक, आई डिडंट नो दिस, थैंक यू फॉर अपडेट। सो वर्डिक्ट कल आएगा इसका। तो आपको अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी 13 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर के देखिए, इसमें कुछ गलत या सही की बात ही नहीं है। आप कोई भी कुछ भी गलत भी करोगे कि सही भी करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दोबारा से दी जाएंगी। फिर 16 तारीख के बाद फॉर्म दोबारा से भरा जाएगा। आप वेबिनार अटेंड कर रहे थे फ्रॉम एसपी क्लासेस। माय नेम इज पवन, आई एम फ्रॉम एसपी क्लासेस एंड करियर लॉन्चर। Career Launcher is an institution settled across 200 locations in India. We prepare the students for CAT, CLAT, civil services, banking, and medical and engineering coaching. So we cater to students across India. मुंबई में जैसे मैंने बताया हमारी लोकेशंस वसई, विरार, ठाणे, बोरीवली, मलाड, विले पार्ले, और वाशी, नेरूल, खारगर, पनवेल। तो ये अलग अलग जगह पे हमारी ब्रांचेस हैं, और पुणे में भी हमारी ब्रांचेस हैं। सर, वन क्वेश्चन इन दिस फॉर्म दे हैव आस्क्ड द परसेंटेज एंड मार्क्स ऑब्टेन। सी, आपने सीईटी वाली इंफॉर्मेशन अभी तक उन्होंने पूछी ही नहीं है, वो सेकंड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपको अपने बोर्ड के मार्क्स तो भरने ही हैं, दैट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ओके, सीईटी पे एडमिशन, आपके सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन होगा, वेदर यू वांट टू टेक एडमिशन ऑन सीईटी और बोर्ड मार्क्स। तो वो क्वेश्चन आपसे तब पूछा जाएगा जब आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो वहां पर आपके सीईटी के मार्क्स पे लेना चाहेंगे कि बोर्ड के मार्क्स पे लेना चाहेंगे, वो आपका बाद का सेकंड फॉर्म में आएगा। एंड एडमिशन विल स्टार्ट ओनली आफ्टर सीईटी रिजल्ट इज अनाउंस्ड। एसपी क्लासेस की कोई ब्रांच साउथ मुंबई में नहीं है, हमारा विले पार्ले में ब्रांचेस है। सर, फॉर फॉर्म 1 डज द स्कूल हैव टू वेरीफाई द मार्कशीट? यस, फॉर्म 1 के लिए स्कूल को वेरीफाई करना पड़ेगा मार्कशीट। दे हैव अ कंट्रोल, एक्चुअली उनके पास एक कंट्रोल है कंप्यूटर में, वो उसको वेरीफाइड या अनवेरीफाइड कर सकते हैं। जैसे आप उनको जाओगे तो वो उसको वेरीफाई कर देंगे। हालांकि कई लोग तो फोन पे भी कर देंगे आपकी वेरिफिकेशन।
उनको पता, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपका फॉर्म आपके स्कूल में पहुंच जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं वैसे सबका। नहीं होता है तो आप 2 दिन बाद जाकर वहां पे पता कर लीजिए आपने मेरा फॉर्म वेरीफाई नहीं किया। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी स्टूडेंट को अगर 11th-12th साइंस के लिए एडमिशन लेना है तो एसपी क्लासेस वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लासेस। हम लोग 2 तरह के कोर्सेज कराते हैं, एक प्रीमियम कोर्स है और एक एक्सटेंडेड प्रीमियम है। प्रीमियम कोर्सेज में हम लोग जो पढ़ाते हैं, एक्सटेंडेड प्रीमियम में 3 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं। एक्सटेंडेड प्रीमियम का मतलब इंटीग्रेटेड, हमारे दोनों तरह के कोर्सेज हैं, क्लासरूम भी और इंटीग्रेटेड भी। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज विजिट एनी ऑफ द नियरेस्ट ब्रांच एट एसपी क्लासेस। माय नेम इज पवन और मैंने आपको अपना नंबर शेयर किया है। आप में से अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क मी। वी विल कीप ऑन गिविंग सच सेशंस। आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है तो ये लेक्चर यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और मैं आपको यूट्यूब का लिंक, हमारा जो ग्रुप है इसका FYGC CET का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी शेयर कर दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी बोलिए वो भी अपना सेशन इसमें टेलीग्राम ग्रुप में अटेंड रहें, ताकि उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन ना छूटे। I would say best of luck to everyone. Please stay home. Please stay safe. Do not stroll here and there for any unemergent reason. So best of luck. Thanks to you. Thanks for listening to me. आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुना। आप लोग सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, and I would say again best of luck. Thank you.